Great. Vaga, I think there was performance of Satinder Sartaaj on 26th, I think. Were you there? Yeah. No, 26th. No, we went on 27th, but somebody went on 26th also. This is very good. This thing, there's a lot of, of course, being Republic Day, there's a lot of action that day. So, Yeah. yeah. Great. Good. How are the markets treating you? मतलब ठीक है, portfolio की थोड़ी धुलाई हो रही है, but that's okay. I mean, I think that's not to be touched. It's a long-term position. Yeah. And yeah, I think in the F&O side, at least not losing money. And Friday was a good day. I think Thursday I took a wrong position. I actually went on a little bit on the C side when it should have been on the PE side. But okay, I think the mistake that day was I didn't put a stop loss, which was stupid. I think that I should have actually had a stop loss. But I think every day you learn, so can't complain. And like I said, overall, maintaining, not losing too much money, which I think in this market is a good thing. Yeah. So Yeah. and of course, your advice on buying that long-term put was a good thing. तो 700 में उठाया, मतलब I think अब तो 920 930 चल रहा है वो. So that's a good hedge on the portfolio as well. Yeah. So thank you for that advice as well. At least it doesn't make you anxious. That's the whole point. So true. Great. But now, in fact, one of the questions, of course, when everyone joins, post that as well, is does it also make sense to now be an option seller? Because premiums have gone mad. Matlab, in the money, premiums, matlab, jo 100-150 tha, 500 rupees chal raha hai, matlab, so is it now an option selling time? So you'll have to have your inputs, when we get started on that as well. Yeah, I think, it's past 9. So, not at all. Don't sell options, and not till, I think, you can sell them after 9 only if the India VIX goes down below 15. So when the volatility is high, then you should never sell options. So your benchmark is VIX below 15 should be your benchmark there. And that is when you sell options, because options will make you money only in low volatility zones, right? So yeah, that's when you should sell options. I mean, there could be plenty of answers, like you can sell far strangles, but I won't advise that. Let the VIX cool down first, and then once the VIX drops after the budget, so probably around 8th, 9th, after all analysis is done and all the people have taken their bets and everything, the VIX will fall down someday below 15, 14. When it comes to that levels, that is when probably, yeah. Okay, cool. That works. Hi, Amol. गुड मॉर्निंग पुनीत, कैसे हो? ठीक हूँ. मेरा एक सवाल था. हाँ जी. कि अभी हमने 1 साल से सिस्टम को फॉलो कर लिया और जो भी रिजल्ट है हमें सामने दिख रहा है, तो सिस्टम को तो हमने फॉलो कर लिया एकदम, मतलब क्या कहते हैं, जो भी रूल्स हमने बनाए थे उससे हमने फॉलो कर लिया. हाँ. तो मुझे ये क्या समझना था कि स्टॉप लॉस लेना सीख गए हम. और जो भी हमने अमाउंट जो डिसाइड की थी, एक 1 लाख रुपए समझो, तो उतने पैसे तो आप इन्वेस्ट भी हुए नहीं, मतलब आधे इन्वेस्ट हुए. मतलब मैंने मेरे हिसाब से ही इन्वेस्ट किए थे, मतलब कि कभी 2-3 मिल गए तो भी मैंने एक ही बाय किया था, ज्यादा नहीं किया था समझो. तो जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमें, कि हमारे इतने पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं, तो वो जो हमें पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड अमाउंट दिखती है, उसी को हमने, मतलब क्योंकि हमने कैसा किया कि अगर इसमें स्टॉप लॉस हो गया, तो हमने वो बुक कर लिया, वो पैसे वापस आ गए हमारे. और उसी से हमने फिर से दूसरे नए स्टॉक खरीदे. राइट. मतलब ऐसे उसमें थोड़े से इन्वेस्ट करके फिर से दूसरे वही पैसे रीयूज किए एक तरीके से. तो कैलकुलेशन के बेस पे हम कैसे कैलकुलेट करें कि अगर हम ऐसा समझे कि इन्वेस्टेड अमाउंट ही हमारा मतलब एक्स्ट्रा इन्वेस्टेड है. तो वो समझना था थोड़ा. ओके, तो अमोल, उसके लिए आप कोई जर्नल बनाते हो? ओके, तो जर्नल में आप एंट्री करते हो कि मैंने इतने पे खरीदा, इतने पे एग्जिट किया, राइट?
हाँ यस में पीएनएल का अकाउंट आएगा कि मेरे को इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, हाँ राइट? हाँ प्रॉफिट या लॉस, हाँ जो भी है, हाँ या प्रॉफिट और लॉस, राइट? हाँ तो हाँ तो जर्नल के दो साइड्स होंगे, एक तो है जो आपकी होल्डिंग चल रही है, तो होल्डिंग पे कितना एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस है, और एक आपका मैंने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट? तो वो दो अलग अलग साइड होंगे। अगर आप होल्डिंग का प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो तो यू नो दैट, वो तो आपको पता चलेगा कि अभी रियल टाइम मेरा ओपन जो भी है, पोजीशन पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, राइट? हाँ और एक है कि मैंने 1 लाख रुपया डाला और वो साल के अंत में टोटली ओपनिंग एंड ओपन एंड क्लोज पोजीशंस पे कितना अभी चल रहा है, तो वो 1 लाख डाला और 1,10,000 चल रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 10% है, राइट? अगर 90,000 है तो -10%, -10% है, राइट? हाँ हाँ तो ये आपको दोनों ट्रैक करने चाहिए। अच्छा, वो जर्नल को तो आपको रोज मतलब मेंटेन करना चाहिए एज पर योर नहीं फ्रीक्वेंसी। वो किया है, हाँ वो किया है, या हाँ तो वही मतलब वही मुझे समझ नहीं रहा था कि कैलकुलेशन कैसे करें, थोड़ा सा हाँ, जगह। एक तो है कि पीएनएल को ट्रैक करना, ठीक है, और एक है सिग्मा को ट्रैक करना। हाँ तो सिग्मा आप ट्रैक करते हो? हाँ वो मतलब जर्नल पूरा मेंटेन्ड है उसमें, हाँ, हाँ राइट। अब तक पूरा मेंटेन्ड है, और मैंने मतलब अभी फ्लैग पैटर्न में भी मतलब योगेंद्र को पूछा था हाँ, कि अगर हम फ्लैग पैटर्न में काम कर रहे हैं समझ लो, तो उसका जर्नल भी अलग से बनाना है क्या, मतलब ऐसा करना है? तो योगेंद्र ने बोला कि हाँ तुम अगर फ्लैग में भी कर रहे हो तो फ्लैग का भी अलग से बनाओ और कप का अलग बनाओ, हाँ, ताकि तुम्हारे को कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, तो जितने भी आप सिस्टम्स यूज करते हो हम्म, उसके अलग अलग टैब्स बना सकते हो, ताकि हाँ हाँ आपको हाँ सिस्टम का पीएनएल पता चले, और हाँ और फिर वो जो पीएनएल के कॉलम्स हैं उनको आप एक मेन शीट में ला सकते हो फॉर्मूला लगा के, तो ठीक है, आपको टोटल पीएनएल पता चलेगा और सिस्टम का इंडिविजुअल पीएनएल भी पता चलेगा, राइट? और मतलब सिग्मा ट्रैक करना जरूरी है, बिकॉज मेरे को ये पता चलेगा कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ एज अ ट्रेडर बाय ट्रैकिंग द सिग्मा व्हिच इज प्रॉफिट पर ट्रेड। हाँ जो मतलब साइड में एक सिग्मा ऑप्शन है जर्नल में ही है, तो वहीं पे मतलब एक वैल्यू दिखती है अपने को कि जो भी प्लस या माइनस है, हाँ, पर ट्रेड की वैल्यू है वो, करेक्ट 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 तो उसी को मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है मतलब कैसे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि मेरे को ये पता होना चाहिए ना, अगर मैं लेट से मेरा प्रॉफिट है 10,000 पर ट्रेड, सिग्मा है, अगर वो 10,000 से 12,000 पर ट्रेड गया तो मेरे को पता चलेगा ना कि आई एम ग्रोइंग एज अ ट्रेडर, लाइक मेरा क्या बोलते हैं, मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें से कितना ये फियर ग्रीड ईगो सब बाहर जा रहा है। और जर्नल में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि मैंने जो ट्रेड ली उसके पीछे मेरा इमोशंस क्या थे वो भी आपको लिखना चाहिए। मतलब अगर वो तो अगर सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो लिखना है ना, मतलब नहीं, हमेशा लिखना है। अगर सिस्टम को फॉलो किया तब भी आप लिख सकते हो कि अच्छा मैं कूल एंड काम टेम्परामेंट था कि नहीं था। अच्छा मैंने सिस्टम को, कई बार होता है आपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लिया, राइट, बट आपने जल्दी एग्जिट कर लिया, हाँ वैसे या तो कोई, आपने सिस्टम के हिसाब से एंट्री आया पर आपने लेट एंटर किया, हाँ हाँ राइट, बट हाँ वो ट्रेड तो ठीक जाता है, बट हम वो वाले जो फीलिंग्स और इमोशंस है वो मिस कर जाते हैं डॉक्यूमेंट करना। तो जितना, और हालांकि जर्नल आपकी कोई देख नहीं रहा है, बट हाँ आप अपने लिए नहीं तो हाँ कुछ मापदंड रखोगे, राइट? हाँ इमोशंस नहीं लिखे उसमें, लेकिन अगर हमने मतलब एग्जिट किया है तो जो भी ऐसा ही लिखा है कि सिस्टम के हिसाब से एग्जिट किया है। हाँ, वो अपने से झूठ बोलना है, थोड़ा डीप डाइव करोगे। नहीं नहीं एक, अब तक तो मैंने सिस्टम को ही फॉलो किया है, तो झूठ कभी बोला नहीं, मतलब ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, मैं सिस्टम फॉलो तो आप कर रहे हो, राइट, हाँ हाँ 100% आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो, बट थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव अपने लिए इन्वेस्टिगेट करो कि अच्छा मैंने लिया तो सही, क्या मेरे को किसी टाइप का कोई डर था, क्या मैंने ज्यादा क्वांटिटी लिया, कम लिया, क्या मैं उस टाइम कूल था, क्या मैंने टाइम को फॉलो किया, क्या मैंने उतनी देर तक ट्रेड रखी जितनी देर तक मुझे रखनी चाहिए थी, राइट? वो सब
अपने लिए लिखना है, कोई आपकी जर्नल तो देख नहीं रहा। हाँ हाँ वो तो ठीक बट है। जितना अपने लिए आप डॉक्यूमेंट करते रहोगे, कौन सा दिन था वो, हम्म ठीक है, कौन सा दिन था, लेट्स से थर्सडे को आपकी लूजिंग ट्रेड्स आती हैं, हम्म तो ये मैं जानना, मैं उसी को, डेटा को फिर मैं एनालाइज कर सकता हूँ ना कि मैं कौन से दिन मेरा ऐसा क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी दिन ऑफिस जाते हो, किसी दिन नहीं जाते, राइट। जिस दिन आप ऑफिस जाते हो उस दिन आपकी विनिंग ट्रेड्स होती हैं। हम्म जिस दिन आप ऑफिस नहीं जाते उस दिन अगर कोई पैटर्न समझ आता है तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। जैसे जिस दिन मैं ट्रैवल करता हूँ उस दिन मेरी विनिंग ट्रेड होती है। तो ये पैटर्न मुझे तभी दिखाई दिया जब मैंने उसको देखा। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जब, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ और फ्लाइट में होता हूँ, तो मैं उस ट्रेड का कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो विन करती है। अच्छा। नहीं तो मैं ओके। उसको छेड़ाखानी करता हूँ। तो ये पैटर्न्स आपको जानने बहुत जरूरी है। ओके। और इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल था कि जैसे कि हम सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन जो फ्रेंड सर्कल है या फिर कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स के बीच में हम काम कर रहे हैं, ग्रुप्स बने रहते हैं, बहुत सारा डिस्कशन हम करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि अगर हमने कप पैटर्न के भी स्टॉक लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए लिए हमने, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो रोज ट्रैक करते हैं वो लोग। मैं भी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर हमें आदत है, हमने खोल लिया तो हम देख ही लेते हैं। तो वो लोग डिस्कशन में क्या होता है कि हम पे एक अजीब तरीके का प्रेशर बन जाता है कि अगर वो स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है रोज का, तो वो बोलते हैं अरे देखो ये तो अभी स्टॉप लॉस हिट करेगा, अभी शुक्रवार को देख लेना, ये हो जाएगा। तो हमको भी ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो सही में नहीं, मतलब नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो हम भी ट्रैक करने लग जाते हैं अननोइंगली। और इवेंचुअली वो शुक्रवार को थोड़ा सा मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया, तो हम देखते, मतलब 3 को ही हम वो काट देते हैं, मतलब कि शुक्रवार को ही हम बोलते हैं हाँ यार ये तो नीचे बंद हो रहा है, कर दो, क्लोज कर दो। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है हमको, मतलब कि हमको सिस्टम फॉलो करने से थोड़ा सा डाइवर्ट अननोइंगली हम डाइवर्ट मतलब हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ। तो उससे कैसे डील करें हम, मतलब अभी तो हम मतलब कर रहे हैं, हाँ ठीक है, कोई कुछ भी बोल रहा है तो ओके, हम तो हमारे हिसाब से ही चल रहे हैं, हाँ। जो भी डिसाइडेड है, लेकिन फिर भी मतलब वो बहुत बार ऐसा होता है, अरे यार मैंने तो ऊपर बुक कर लिया, तू क्या कर रहा है, तू क्यों नीचे, मतलब तू क्यों रुका हुआ है, क्यों फॉलो कर रहा है, ऐसा लोग भी बोलते हैं बहुत सारे हाँ। कि मैंने तो 20% हो गया था तभी निकल गया मैं। हाँ। मतलब वो रूल नहीं फॉलो कर रहे बेसिकली, जो भी है हाँ। हाँ। उनको, मतलब अगर उनको ग्रिड था तो वो ग्रिड से आगे, मतलब उन्होंने ग्रिड, उनको समझ नहीं आया कि वो ग्रिड था, तो उन्होंने वो ग्रिड के इससे वो कर लिया बुक, और वो बाद में वो बोलते हाँ देखा मैं नीचे आ गया, मतलब जो भी है, समझ रहे हो मतलब क्या बोल रहा हाँ, हूँ। मैं समझ गया आपका सवाल। तो हाँ अमोल, उसमें 3-4 चीजें हैं। पहली चीज कि आप, अगर आपकी कम्युनिटी सिस्टमिक ट्रेडर्स की है, हाँ ठीक है, तो उन्हीं में आप ये कॉन्वर्सेशन करो ताकि उनको भी सिस्टम पता है, आपको भी सिस्टम पता हाँ यस। है। हाउएवर आपको ये भी मानना और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट में जिस मार्केट में खेल रहा हूं वो वॉलेटाइल है बाय नेचर, ठीक है। अब मैं वही, मैंने अप्पू घर का एग्जांपल दिया था ना पिछली बार कि भाई अप्पू घर में एक वो छोटी वो पिग ट्रेन होती है ना, छोटी छुक छुक वाली, मतलब कोई भी हाँ हाँ आप तो इधर समझ नहीं गया। रहते होंगे, हाँ मतलब है। अम्यूजमेंट पार्क में वो छोटी छोटी ट्रेन भी होती है और एक रोलर कोस्टर होता है। हम्म अब मेरे को रोलर कोस्टर के मजे चाहिए तो मेरे को ये जानना पड़ेगा ना मैं रोलर कोस्टर पे बैठा हूं, करेक्ट। तो ये तो मार्केट तो वॉलेटाइल बाय नेचर ही है, तो वो रहने वाली है, ठीक है। अब ये जो मार्केट वॉइसेस हैं, ये जो इधर उधर की बातें हैं कि अरे तू क्या कर रहा है 20%, तो सबसे पहले तो उसमें उलझना नहीं है आपको, कॉन्शियसली अपने आप को ट्रेनिंग है ये आप, ठीक है, कॉन्शियसली आपको ट्रेन करना है कि हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, और अगर कोई दोस्त किसी दिन आके बोल देता है अरे 20% ऊपर चढ़ गया तूने बुक नहीं किया,
ठीक है, तो आप उसको बोलो कि हाँ यार मैंने बुक नहीं किया बिकॉज मैं 2000% की वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो आगे से ये बोलेगा अरे ऐसे थोड़ी होता है कुछ 20%, मतलब ऐसे थोड़ी कोई तुम्हारा 2000% भाग जाएगा, राइट? बट it is not for us to shut them down, right? But to consciously understand, आप वो 2000% उसके लिए नहीं बोल रहे हो, आप अपने लिए बता रहे हो, अपने आप को बता रहे हो कि मैं इसको होल्ड क्यों किया है, बिकॉज आपकी क्वांटिटी, आपकी जो अक्यूमुलेशन है ना, वो आपको पैसा बनाती है। इन आउट होने से पैसा नहीं बनता है। आज तक कभी आप किसी की भी कहानी सुनोगे, बायोग्राफीज हैं, ग्रेट ट्रेडर्स के इंटरव्यूज हैं, उसमें इन आउट, ये जल्दी जल्दी खरीदना बेचने से पैसा नहीं बनता है। उससे कैपिटल जनरेट हो सकता है बट वेल्थ बिल्ड नहीं हो सकता है। वेल्थ बिल्ड क्या है? टू बाय एंड फॉरगेट, उसी से पैसा बनता है। जो पैसा आप भूल गए वही पैसा आपको, आप भोग सकते हो, राइट? कैपिटल जनरेट कर सकते हो ट्रेडिंग करके। हाँ, For, मतलब बेसिकली हमको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक दो अलग कंसेप्ट करके ही काम करना है बेसिकली। हाँ, अलग ही है वो, हाँ अलग ही है। हाँ, जब वो आप उसको अगर मिक्स करोगे तो हाँ आपको परेशानी होगी। हाँ, वही मतलब थोड़ा सा हमको क्या आप कहते हैं कि हमको वो थोड़ा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो मतलब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये दोनों मिक्स हो जाते हैं हमारे अलग हाँ एक हाँ तरीके से। हाँ, और तो इन्वेस्टिंग, हमको समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं हम, मतलब वो हाँ ठीक हाँ, कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जो भी है ऐसा हो करेक्ट जाता करेक्ट। है। और क्या था? देखिए इन्वेस्टिंग जो है ना अमोल, आप जिस घर में रहते हो आप उसको बेचोगे नहीं। हम्म तो भाई घर, आप वो घर में रह रहे हो। जो हम्म ट्रेडिंग है वो ये है कि अब इस घर में रहते हुए मैं कैसे कमाऊं, हम्म ताकि भाई इस घर में रहते हुए मैं अगर कमाऊंगा तो ही तो मैं कुछ बल्ब चेंज कर दूंगा, कुछ ब्यूटीफाई करूंगा, कुछ हम्म एक्सेसराइज करूंगा हाउस को, राइट? यस हाँ घर को और अच्छा बनाने के लिए मेरे को कुछ स्क्रैपिंग करनी पड़ेगी ना, स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। वो हम्म है ट्रेडिंग, ठीक समझ राइट? हम्म ट्रेडिंग को जब आप इन्वेस्टिंग के कैपिटल जनरेशन का टूल की तरह इस्तेमाल करोगे तब ट्रेडिंग आपको रास आएगी। हम्म ठीक है, ग्रेट, यस। हाँ जी Very अभिजीत, good morning, Abhijit this गुड side. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Punenji, although I am very much novice in this field हम्म and I am just learning from you, Joginderji and Shomirji, last 6 months and enjoying quite lot. I have one goal, basically my asset decision liya, मतलब, I need your guidelines. So presently we are doing the calf, that is the investing part. Another is the swing also. It is going slowly, but okay, it is going learning phase. Now I have set on goal that next 5 years I need to learn 1 CR through this, beside my mutual fund SIP. But through this new learning, I need to earn this 1 CR corpus. So what are the steps I should do? So we have 5 years. I have 5 years in front. So I need that guidelines from you. Abhijit, if you want to see, if you say that I'm going to earn 1 crore in 5 years from trading, तो वो तो कभी होने नहीं वाला। Yeah. Okay. ठीक है, आप ट्रेडिंग में अपने आप को ट्रेन कर रहे हो Okay. टू व्हाट आई सेड जस्ट नाउ टू अमोल, की ट्रेडिंग से आप कैपिटल जनरेट कर रहे हो और वो कैपिटल किसी स्टॉक में डाल के भूल रहे हो, तब आपका वो 1 करोड़ बनेगा। ठीक That है, I'm okay. That मैं mindset आपको is एक okay. चीज दिखाता हूँ क्विकली, ठीक है? Okay. Probably this will help everyone.
आपको ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। अब अभिजीत आप ये देखो कि ये मैंने ना एक साल का एक टेबल बनाया है। मैंने इसमें क्या किया है, इसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अभी उसको बिल्कुल साइड पे रख दो। अगर मैं रोज का 1000 रुपया डालता हूं और अगले दिन मैं उसको 1% से बढ़ाता हूं तो 1010 हो जाएगा। अगले दिन 1% से बढ़ाता हूं 1020 हो जाएगा। ये मैं डालता रहता हूं। ओके। खाली 1% बढ़ा रहा हूं मैं अपनी तरफ से। तो स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न आ रही है वो कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं 1% बढ़ाता बढ़ाता मैं 365वें दिन उसको 37,409 रुपए डाल रहा हूँ मैं। ओके। ठीक है, बट 1% से ही बढ़ रहा है, इसमें और कुछ नहीं कर रहे हो आप। और आप एक साल में 37 लाख रुपए डाल दोगे स्टॉक, चाहे वो स्टॉक में डालो चाहे कहीं भी डालो। खाली 1% रूल लगाओ कि मैं रोज 1% इसको बढ़ाऊंगा। तो हमारे को ये जो टाइनी इंक्रीमेंट्स है ना, ये दिखाई नहीं देते हैं। मेरा पॉइंट ये है। ठीक है, अब ये आपके लिए 1000 हो सकता है, या आपके लिए 2000 हो सकता है, या आपके लिए 4000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ये सोचो 2000 के हिसाब से आपके टोटल, 4000 के हिसाब से आपके टोटल 1,47,00,000 बन जाएंगे एक साल में। बेस्ड ऑन द 1% इंक्रीज। हाँ, 1% इंक्रीज फ्रॉम योर साइड। वो जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न है वो तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं अभी। बट ये जो इंक्रीमेंट्स है ना, क्योंकि आप ये देखो 4000 डाले, फिर 4040 ही डालने आपको दूसरे दिन, ज्यादा कुछ नहीं डालना है। अब ये कहां से आएंगे 4000 4040? ये जो अमाउंट है ये आपके ट्रेडिंग से आएंगे। ओके। ठीक है, और जब आप इनको भूल जाओगे तो ये जो आपने 1,47,00,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, जो कि हम सोचते ही रहते हैं कि कभी जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन करेंगे, नहीं, आज करोगे। आज जितना भी है ना उतना आज ही करो। ऐसा होता है ना, तकिए के नीचे पैसे पड़े हुए मिल गए, कोई एक ऐसा इंसान दे गया हमारे को पैसे जो हमारे को याद ही नहीं था। How that coffee can investing हाँ, philosophy. एग्जैक्टली। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग वही है। डालो और भूल जाओ। Got it, got अब it. ये आएंगे कहां से? ऐसा नहीं है ना कि रोज तकिए के नीचे मिलेंगे, ये आपके ट्रेडिंग से आएंगे। तो ट्रेडिंग में आपको बड़ा पैसा नहीं कमाना है। Okay. ट्रेडिंग में आपको वो सिस्टम देखना है कि आपने मान लिया कि रोज के अगर मुझे 4000 निकालने हैं तो मैं आपको रोज के 4000 निकालने हैं, काम खत्म। ठीक है। इस तरीके से टाइनी इंक्रीमेंट्स में खाली 1% बढ़ाने से आपका पोर्टफोलियो बनेगा, जो कि अभी नहीं बनता, क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं, हम वो ड्रीम करते हैं कि किसी दिन ऐसा होगा। किसी दिन नहीं, आज ऐसा होगा। ठीक है, गॉट इट। जिस दिन आपने ये पैसे नहीं डाले, रोज के आपने ये 10-15 जो भी एक स्टॉक पकड़ लो उसी में डालते रहो बस। कोल इंडिया पकड़ लो, डालते रहो बस, भूलते जाओ। कोई भी पकड़ लो एक स्टॉक, जरूरी नहीं है कोल इंडिया इज नॉट अ रिकमेंडेशन। ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। Okay. What else? किसी ने अडानी के बारे में सवाल ही नहीं पूछा। What are your thoughts though, Puneet, on the Adani side of things? I mean, it's a very minuscule part of my holding, but
Just wondering that do you think that this thing is like overdone? Is there 2-3 days more of uncertainty? And even Ambuja as a stock, your thoughts on that? Because Ambuja is a relatively new acquisition by Adani. And I mean, as a company, it's a great company. 25% ek din mein dhulai hona, matlab, to my mind, is madness. So thoughts on both Adani and Ambuja? So I think if this keeps falling, maybe it falls another 20-30%. Nobody knows. But I don't think long term there is any problem in the broader market, because right now the market is falling because Adani has a lot of weightage in the indexes and different sector indices also. But I don't think, maybe some scam in like some vested interest is there, maybe who knows, Adani wanted them to release a report so that he can buy his own shares at a lower cost, right? And then how will I earn from the budget if the market is at the top, right? That's what I feel. I would have to, if my cup is full, if I want more coffee in that cup, I would have to drink some coffee before I can ask somebody to pour more coffee, right? So it's more like that I would have to make the market crash somehow so that I can come at a healthier level and then take the top out. So this probably could be that play. Regarding Ambuja, see, most of the money that Adani has deployed in the last 3 years is in government projects, right? And for that, he's been buying these cement companies and metals and all that. Like the metal index used to be Tata Steel and SAIL, but now it is Adani as the biggest constituent of the metal index, the biggest player having weighted. So I think because it is invested, one, Adani, all the Adani stocks are largely held by the promoters. So retail has very less participation, right? 20-25%. And out of that retail also, there are a lot of shell companies, so which are holding these stocks. So largely the promoters also have a pseudo holding in the retail portion also, right? Second, that most of the money is deployed in the government projects. So unless Adani and the government has 1 year to go before the elections happen, right? So and it is natural if they are not commenting on it. It is probably the play is that, okay, let it fall. At least we are the biggest beneficiaries. If my stock I am able to buy 100 rupees stock at 70 rupees, I am the biggest beneficiary, right? And people, it's not a comment, but people who are willing to play such moves, maybe it's not a question of integrity or ethics. People who will have ethics will probably not make money here, right? But if Adani does not care about his reputation and cares about profitability, this is a good way to do so, right? So yeah. Sure that. Yeah, it's amazing that there's been no statement and this is letting it come down, and especially the IPO. I mean, it's 3100 ka lower band and it's already 2700 pe share trade kar raha hai, and it goes down to 2300-2400. I mean, I think it'll be a super time for them to get in. So agree. Yeah. I mean, these are bigger games that play, right? Company, I don't know. I'm not just saying, who knows that this is not a planted report, right? Correct. Yeah, these are big games that play, right? I mean, it's beyond that levels. Anything is possible. Yeah. So what's the plan for the week ahead? Is it stay light and wait and watch, or let the budget pass? Let the budget pass and then take a call. Usually this time we are lucky to have it 1 day before the expiry. So expiry might be
I mean, you have like 6 to 10 hours of, expert commentaries and all the analysis, and then they can prepare themselves for an expiry, right, on Thursday. So yeah, and stay light. Even if you take a gamble, then gamble small. Yeah. Yeah, I think this is going to be a a roller coaster, educative week for everyone who's new to the markets. They'll see the epic swings either side. So, Yeah, both sides. I mean, they Mm. will let you make money both sides. So yeah, it will be like, first they will give money to the ports, and then they will give money to the call, something like that. So yeah. So, yeah. You're going to be an option buyer only, not going to be a seller, as you said. Yeah, no selling till the VIX falls. Yes. Take care. Great. Cool. Thank you so much. Most welcome. I have a question. Yes, Vandana. Good morning, everyone. Morning. The system that we are using to buy the Mm. stocks, so I see that I'm buying mostly mid-cap funds. Mhm. So large cap funds are not showing here, or they're not on the list. I don't know. While they say portfolio should be 70% large cap and 20% we should invest in mid cap. Mm. So I have mostly mid cap funds. Mm. Yeah, so the one that you're mid-cap stocks, you mean, right? Yes, yeah, mid cap stocks. Yeah. So in Nifty 500, there are all the stocks are somewhere above the market cap of 10,000 crores. So they would be mid caps, but why the large caps are not showing there is because the volumes that you see Mhm. on the Edelweiss link, Yes. for those Nifty 500 stocks, usually they don't happen in large cap so easily. So how do we buy a large cap? You just buy it without using this system. So if you select a handful of quality large caps, then you just keep investing in them, just like you save money in a bank account. Okay. So how does one decide on like what to buy based on? Okay, so I'll help you with that. I'll send you 5 stocks. So take something which you understand. So let's say, if you use Colgate products, right? So Colgate is something that you use every day. It's a consumption stock, right? And it's a large I get it. and it's a global company. Right. So that's something that you can use to invest in regularly. Nestle is something, again, a lot of people would use Nestle products. Yeah, yeah. Why I'm taking consumption names is that, I would not suggest you to buy something which you don't which the industry or the domain, the business, if you don't understand that, you won't understand the finer things about how the stock operates, or when the government takes out the regulations, the macros about it. I would want you to avoid that. Okay. So, take a bet on a large cap, which where you understand how it behaves. And companies that have ROCE above 25%. Yeah, most probably. I mean, that's a good company. Okay. Also look at Like LIC, I was saying is 142% ROCE. maybe, but LIC does not have an age in the stock market. It was listed, Yeah. right? Right. So we won't have enough data, but let me show you something quickly. In fact, there's a video around this. I will share that video on the group on how do you understand alpha and beta. Right, Gaurav, thank you so much. Bye-bye.
how do you understand the alpha and beta? So there is a beta of a stock, which is how does that stock perform in relation to Nifty. So let's say if Nifty goes up by 1 rupee and the stock goes up by 1 rupee 30 paisa, then the beta is known to be 30% or 1.3. Okay. Right? So what we are looking for are stocks which are either low beta or beta is equal to 1. So it is not beating the Nifty and it's not more volatile than the Nifty. Okay. Right? So let me share my screen. So I'm using a tool called Ticker Tape. You can use the same tool. Just going to log in. So this, we can create a screen. Just we have 4718 stocks in total, right? Now I add a filter here called beta. And I also add a filter called alpha. So alpha is how the stock is growing by itself. Okay. Right? And beta is, if you look at beta, measure of company stock price volatility relative to the market. So how is it pegged relative to the index? Okay. ठीक है, तो अभी मैंने बीटा भी ऐड कर दिया और अल्फा भी ऐड कर दिया. Now if I go here and let me just move this somewhere else. If I go to beta, I need a beta maximum of 1. तो ये जो 4700 की लिस्ट थी ये 1900 हो गई, right? And I want a large cap. So there are only 48 large caps with a beta less than 1. Now I want an alpha कि मेरा निफ्टी का रिटर्न बीट हो जाए और इन्फ्लेशन बीट हो जाए. For that I need an alpha of at least 18. So we only have 18 stocks, 8 stocks. Okay. To invest in. अब इसमें से आपका सबसे ज्यादा रिलेटेबल क्या लगता है? Relatable as in? मतलब some business that you understand. I've just got into it, so I don't understand. I will have to study. Ambuja Cements, luckily I exited 2 months back. अंबुजा को तो आप छोड़ दो, ये लिस्ट निकाल दो. It's anomaly. So I'll send this to you on WhatsApp. BEL I have, but it's not doing well. Yeah, okay. Sun Pharma. हाँ, तो सन फार्मा इसकी दवाइयां तो सब लोग लेंगे ही, राइट? Correct. अपोलो हॉस्पिटल, भाई हॉस्पिटल तो चलते रहेंगे. मतलब you can decide. These are not recommendations. You can decide कि अच्छा ठीक है. TVS Motor is कि भाई ये 2 wheelers तो चलते ही रहेंगे. It's not dependent on a government. It's not dependent on global factors. ऐसा नहीं कि कहीं war हो जाएगी तो 2 wheeler बिकने बंद हो जाएंगे. राइट? ऐसा भी नहीं है कि भाई कंज्यूमर, मतलब ये तो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है हर घर की. But So
you can also start understanding about the company. Management क्या कर रही है, आपकी values के साथ वो management की values align होती हैं कि नहीं होती हैं, कितनी profitability है. When you pick one company, and one company is enough. When you pick one and then start understanding about it, then you will get then you can start investing in that. As per the formula that you have put. Sorry, I didn't get your question. I think the voice was breaking. Companies come out as per the formula that you have put here. Yes. Okay, so ITC, HUL, they are like. ITC, HUL are not following in this formula, ना? उनका या तो बीटा ज्यादा होगा या अल्फा कम होगा. Okay. मैंने अल्फा 18 क्यों लिया, क्योंकि 18 पे आप अगर 18% रिटर्न आती है आपके स्टॉक के ऊपर और आप उस पे टैक्स देते हो 30%, तो टैक्स 5.5% कम हो जाता है, राइट. तो आपको जो नेट इनकम है वो करीबन 13.5% या समथिंग 12.5% आएगी, राइट. So what is this? Is this an app or what? Indian. This is a website. This is a website. This is a website. I'll send you the link. Yeah, and I will also need to understand, I mean, whatever formula you have put. हाँ, वो तो बस इधर स्क्रीनर पे जाके आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो I will send you a video which is supporting what I did now. Okay, fine. Okay, what else? विनय जी, आपका कोई क्वेश्चन है? Hi sir, good morning. Morning. Actually sir, I am very new to it and just I am listening and gaining as much I could. Okay, आप किससे सीख रहे हो? योगेंद्र जी. Okay, आप अभी बैच खत्म हुआ है आपका? नो, बैच तो मेरा लास्ट मंथ नवंबर खत्म हुआ. अच्छा. बट क्या है, आई एम नॉट so usual to this and I am not paying that much of attention as everybody is because I am from defense background, but I am interested in this. Okay. And I keep on listening your sessions. And just like Anmol said about the journals, that was helpful for me. And एक question था मेरा, if you could explain. हाँ जी, बताइए. क्योंकि वो योगेंद्र जी का था. जो हमारा सिस्टम था, उसमें बात हुआ था कैपिटल का, कि जैसे आपका कैपिटल जितना भी हो, तो हमने 1% रिस्क लेकर के चलना है because it's to save our capital. We have to hold our capital. We didn't have to lose it. तो उसमें योगेंद्र जी ने हमारे को एक और बात बताई थी कि उससे और भी ज्यादा अगर आप कैपिटल कभी लॉस नहीं होगा. अगर आप 10% लूज में चले जाते हो या 10% प्रॉफिट में चले जाते हो, तो उसमें उतना ही 10% आप ऐड कर दो या डिडक्ट कर दो, उसमें कर लो. तो लास्ट मंथ मेरे साथ कुछ हुआ, जो मेरे फ्लैग पैटर्न वाले स्टॉक्स थे, तो उनमें मेरे को वो स्टॉप लॉस मीट किया था उसमें, तो उसमें मेरे को लॉस हुआ. तो वो हमें कौन सा लेना है, 10% ऑफ द टोटल कैपिटल विच वी हैव इन्वेस्टेड, या 10% लॉस होगा वो इंडिविजुअल स्टॉक में, तब हमें डिडक्ट करना है अपने कैपिटल. उसमें वो कंफ्यूजन था मेरे को. ओके विनय, आप सबसे पहले तो वो रिस्क जो है वो 1% या 2% होगा, 10% तो नहीं होगा. नो, रिस्क इज 1%. लेकिन वो 10% में किसका बात कर रहा हूँ,
अगर हमारा जनरल्स में जो हम स्टॉक्स टोटल स्टॉक्स मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि हम टैग पैटर्न में एग्जांपल लेते हैं नेलकास, ट्रेडिंगटन, जीआईसी हो, जीआईसी भी था, तो इन्होंने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर किया था। तो उसमें मेरे को जब उन्होंने बताया कि जब टोटल कैपिटल में से अब आप देखो कि आपका 10% लॉस हो चुका है, 10% लॉस हो चुका है, तो उसमें आप टोटल कैपिटल में से 10% डिक्रीज कर दो। तो वो मैं एक्चुअली कंफ्यूज्ड हूँ कि टोटल कैपिटल का 10% लो, 10% ऑफ 1 लाख या 2 लाख जो भी मैंने ले रखा है, फिर उसमें से डिडक्ट करूं 10%, तो टोटल कैपिटल में से जब डिडक्ट कर। ओके, टोटल कैपिटल अगर आपका 1 लाख है तो उसको आप 90,000 बनाओगे और फिर 90,000 पे कैलकुलेशन करोगे 1% की। ओके ओके, तो वो डिडक्शन मैं करूंगा कब? जब मेरे को देखूंगा कि जितने भी मेरे स्टॉक्स थे मेरे पोर्टफोलियो में, वो लॉसेस, जितने लॉसेस हुए पर स्टॉक्स, वो लॉसेस का जो सम होगा 10% पहुंच जाएगा, तब मैं अपने उस टोटल सम को टोटल कैपिटल से डिडक्ट करूंगा। ऐसा है क्या? मेरे हिसाब से, ये तो योगेन आपको ज्यादा बता सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो आप रोज, अगर आपने आज लॉस किया और कल लॉस किया तो मैं तो रोज ही उसको कैपिटल को बढ़ाऊंगा घटाऊंगा। अगर आप रोज नहीं कर रहे हो, लेट्स से आपको हफ्ते में एक ट्रेड आती है तो हफ्ते के बाद आप उसको कैपिटल को बढ़ाओगे, बट जब भी आप रिस्क कैलकुलेट करोगे, ओके, जब भी आप रिस्क कैलकुलेट करोगे तब आप उसको कैपिटल को एडजस्ट करोगे। ओके ओके, सॉरी, आप जब भी रिस्क कैलकुलेट करोगे तो आप एडजस्टेड कैपिटल के ऊपर करोगे। एडजस्टेड कैपिटल के ऊपर हाँ, जो हमें प्रॉफिट हुआ, जो हमें लॉस हुआ, तो उस कैपिटल में भी हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, उसके ऊपर 1% रिस्क लेंगे। आपके पास 100 रुपए थे विनय, और आपने 2 केले ले लिए 10 रुपए के, तो आपके पास 90 रुपए ही बचे ना जी। तो आप वेट थोड़ी करोगे कि अब मेरे पास नहीं 100 रुपए से ही अभी कैलकुलेशन करूंगा। जब आप अगली दुकान पे जाओगे तो आप 90 रुपए से ही तो कैलकुलेशन करोगे। क्योंकि रिमेनिंग मेरे पास अमाउंट वही है। हाँ, उसी से करोगे ना। आप ये थोड़ी कहोगे नहीं मेरे पास तो 100 रुपए थे तो मैं 100 रुपए से ही खरीदारी करूंगा। हाँ जी। तो जो कैपिटल आपका चला गया उसको आप कैलकुलेशन में वैसे भी नहीं ले सकते ना। यस। ठीक है, ओके। ओके, और बताओ। नथिंग मोर सर, ये मेरा मेन डाउट था। गॉट इट। ओके, ओम प्रकाश जी, नरेंद्र जी, वसुधा, आपका कोई क्वेश्चन है? Can I ask? हाँ जी वंदन। How did banks get affected with this, with Hindenburg report? Because Adani had taken loans, or is that the reason? Yeah, so banks have exposure to lending to Adani. But like today, SBI is saying we are not affected. There's no problem. Everything is taken care of. हाँ, the thing is that they are exposed by lending to that group, right? Now they might not be exposed as much, like वो उसकी डिग्री कितनी है वो अलग अलग बैंक्स की ऊपर नीचे होगी, तो एसबीआई का कम होगा या किसी एक पर्टिकुलर बैंक का ज्यादा होगा। बट जब क्या होता है कि जब मेल्टडाउन आता है तो एज अ रिटेलर, लाइक आपको मेरे को नहीं पता होगा ना कि एसबीआई कितना एक्सपोज्ड है या कितना कम है, तो वो फ्री फॉल तो आती है। एंड द फ्री फॉल comes not because they are exposed or not because everybody knows how much they are exposed or not. It comes because there is a panic. So if there are so many people might be requesting their mutual fund redemptions, right? Yes. So Yeah.
requesting for a redemption, the fund manager would also come under stress to sell the stocks and give them the money, right? Yes. So that fall is happening largely due to that. It's not कि अच्छा चलो हम ढूंढते हैं कि अडानी ने किससे कौन से बैंक से पैसा लिया और उसको गिरा. Okay, not directly. Not directly, yeah. Okay. I mean, there are some direct things also happening because the FIs will be doing that, but Okay. not everybody does that. So वो broad based selling अभी भी आप देखोगे जैसे it is not a broad based selling. It is mostly the index falling. Some stocks are even rising now also, like Tata Motors, Bajaj Auto, Mahindra. The auto stocks are not falling, right? Yeah. The metal stocks are not falling as much. The consumption stocks are not falling as much. वो broad selling नहीं है, but हाँ थोड़ा बहुत जो pain है वो है. But everyone will recover from this. Maybe not, but what the question you should be asking is, am I going to exit on my stop loss or not? Matlab, that's what matters at the end of the day. Matlab, I don't need to worry about whether I will recover or whether this will rise or not. Eventually, the markets always keep going up. When that happens, I don't know. But I will exit my positions when my stop loss hits. That's one. Okay. And not to wait. Huh? One should not wait. Not beyond my stop loss. I will wait till my stop loss hits. If my stop loss has not hit, I will wait. But if it has hit and I keep waiting, that's a foolish thing to do. वो तो फिर सिस्टम लर्न करने का फायदा नहीं हुआ ना. हाँ, but like if you sell and next day you see it went up, फिर हम दोबारा खरीद लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, पर तब तक नुकसान हो गया ना, because you bought at a higher price and then you're selling at a lower price and then you buy again. Yes, which is okay, but that is how we make small losses and bigger profits. Because अगर आप वेट करते और उसको वेट करने देते हो, there is an opportunity cost ना. यही पैसा आप कहीं और लगा सकते हो. Let's say you made a loss of 2,000 rupees, right? Yeah. You lost 2,000 rupees, but whatever you took out, first of all, you did not have a guarantee कि ये अगर मैं hold करके रखती तो मैं 2,000 का ये 4,000 ना होता या 10,000 नहीं होता, right? तो अब जो आपने 98,000 वापस ले लिया मार्केट से, वो आप 98,000 कहीं और डिप्लॉय कर सकते हो, which is going up. गारंटी तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, बट वो सिस्टम मतलब it is better to invest in something which is going up instead of something which is going down. Something which is going down is like a falling knife. Yeah. You can't catch, I mean, you can catch a falling knife, but it is stupid. But should one invest at all? Because if the market is so volatile at this point, so should one invest at all? You can wait for some time, but I would rather invest in something which is holding up. Like, let's say, a recent example yesterday was Bajaj Auto. It's going up. It has not fallen. In fact, it has gone up opposite to what the market is, how the market is behaving, right? Now, if I invest the same money in that stock, I am not sitting idle. My capital, why should I keep my capital idle? For what reason? Like, for instance, RVNL is staying put, which is great. Godfrey Philip, all this. But should we be investing in this? Yeah, whatever you can invest in any stock which is still showing a buy, no? Yeah. But these didn't get affected. So one feels that, this is a good buy and one can stay with. Yeah, why not? RVNL, अब RVNL में उसका कोई
लेना देना नहीं है ना, अडानी से भी लेना देना नहीं है। हाँ नहीं, And बट काफी स्टॉक्स गिरे हैं मेरे, बट ये 2-3 है that have like Godfrey Philip, Cochin Shipyard, yeah, RVNL, so rest all got affected except for these 3-4. yeah, because those stocks might be effect वही होता है जो एक तो दो चीजें होती हैं इफेक्ट होने के टाइम पे। एक तो ये कि वो कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेट कर रहा है इन द फैक्टर्स विच आर लेटिंग द मार्केट फॉल, नंबर 1। और या फिर इन स्टॉक्स को कोई ध्यान ही नहीं देता। भाई किसी ने अगर उसको स्टॉक में ही इन्वेस्ट नहीं किया तो वो गिरेंगे भी कैसे? आरवीएनएल, गॉडफ्रे फिलिप्स, अगर इनको कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात है, बट अगर इन पे कोई ध्यान नहीं जा रहा किसी का, या उसमें कोई रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं है, तो फिर बेचिंग, अगर कोई फंड ने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो वो रिडेम्पशन भी करेगा तो इन स्टॉक्स पे कोई आंच नहीं आएगी, राइट? So I have one more question. When Nasdaq goes up, it affects Nifty. Will Nifty also, I mean, if that goes up, this goes up. If that comes down, this comes down. Is there any relation? There is a relation, but earlier there was a strong relation. Nifty, our indexes were dependent on US indices. That relation is slowly getting decoupled. Okay. वो धीरे धीरे उसकी डिपेंडेंसी निफ्टी और सेंसेक्स की ग्लोबल इंडाइसेस पे कम हो रही है या कमजोर हो रही है। Okay, that's good. तो पहले ये होता था कि अच्छा नैस्डैक इतना मूव किया तो हमें भी इतना मूव करना पड़ेगा, या S&P इतना मूव किया तो हमें भी इतना मूव करना पड़ेगा। अब वो धीरे धीरे डीकपल हो रहा है। Okay. पुनीत जी, एक मेरा क्वेश्चन है प्लीज। हाँ जी। जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और जैसे मैम ने अभी नैस्डैक के ऊपर अर्लियर डिपेंडेंसी हमारी ज्यादा थी, इट मींस कि इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमिकली, ये भी रीजन है क्या इसके पीछे? या इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है, इंटरडिपेंडेंट नहीं रहा इनके ऊपर, अभी इंडिपेंडेंट हो रहा है, ऐसा कुछ फैक्टर है क्या? सो विनय, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, ना मैं ज्यादा फॉलो करता हूं, ना मैं उस पर इतना कमेंट कर सकता हूं, बट इंडिया डेफिनेटली बाकी इकोनॉमीज को देखो तो वो रेजिलिएंट भी है और ग्रो भी कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि स्पेशली इन द कोविड पीरियड, दो इकोनॉमीज जिनको बहुत ही घात लगा या जिनको इफेक्ट हुआ है वो है चाइना एंड द यूएस, राइट। तो उस वजह से और फिर वो आईटी मेल्टडाउन और ये फायरिंग और ये सब कुछ, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और उनका जो फिस्कल डेफिसिट है और उनका जो क्या बोलते हैं बॉन्ड की रिटर्न्स, तो वो जितने भी मैक्रो फैक्टर्स हैं वो उनके लिए प्ले कर रहे हैं। हमारे लिए not as a statement and don't quote me anywhere, but हमारे लिए there is nothing to lose, मतलब हम वैसी कंट्री हैं अभी, you know, हम कहाँ जाएंगे, मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे अभी तो हमने करना चालू किया है, तो फिर हम ऊपर ही जा सकते हैं ना, नीचे तो कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए इसी के ऊपर मेरा क्वेश्चन इसलिए था ये, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आफ्टर ऑल वी ऑल आर डूइंग दिस फॉर क्रिएटिंग आवर वेल्थ, है ना। तो मेरा सोचना किस हद तक सही है वो आप प्लीज बताएं मेरे को, कि इंडिया ग्रो कर रहा है और हम इंटरडिपेंडेंसी पे से हट रहे हैं, तो क्या हम अपने खुद के इंडाइसिस के ऊपर कुछ अमाउंट जब भी हम देखें, या जैसे भी मार्केट प्राइसेस हो रहा है या लो जा रहा है, तो उस समय हम अपने इंडाइसिस के ऊपर अगर पैसे लगाएं और छोड़ दें, भूल जाएं, जस्ट लाइक कप पैटर्न, नहीं 1 साल 1.5 साल के लिए नहीं, या जब हमारा स्टॉप लॉस मीट करे उस एंड से नहीं, हमने छोड़ दिया फॉर 10
years or 15 years, just like I am talking about Nifty 20 में, कभी तो हमारा इंडेक्स रहा होगा निफ्टी का 13-14, तभी तो आज 17 पे आया, 18 टच हो रहा है, 18,000। तो अगर इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में अगर फिर भी वो हमें प्रॉफिट दे देता है फिक्स डिपॉजिट और इन सब से, तो ये भी बेटर है, बेटर रहेगा। बिल्कुल, वो तो कोर फिलॉसफी है कि आप पैसा लगाओ और भूल जाओ। यस, तो वो तो बेस्ट ही है, बट क्या आप पैसा लगा के भूल सकते हो? दैट इज द थिंग। आपको अपने को ट्रेन उसमें करना है, क्या मैं पैसा लगा के भूल सकता हूँ? यस, क्योंकि हम पैसा लगा के भूलते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। आप भूल जाओ ये कप फ्लैग और ये पास्ता स्ट्रैटेजी, कुछ भी सिस्टम स्ट्रैटेजी आपने सीखा उसको सबको भूल जाओ और आप कहो कि यार मैं ये बस निफ्टी 20 में पैसा डालता रहूंगा। यस, तो बनेगा पैसा आपका। जो आज 18,000 है वो कल 36,000 हो जाएगा, कल उसके बाद 72,000 हो जाएगा। आपको तो नहीं पता ना। आज मैं बोलूं आपको कि निफ्टी ना 72,000 हो जाएगा, तो आप कहोगे क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है कुछ। बट जिस दिन होगा उस दिन ना आप मेरे से मिलोगे ना मैं आपसे मिलूंगा। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें भूलने वाली ही होती हैं। यही सिस्टम, सबसे बड़ा सिस्टम यही कि लगाओ और भूल जाओ। बट प्रॉब्लम ये है कि आप भूलोगे कैसे? आपको तो टीवी याद दिलाएगा, आपके दोस्त याद दिलाएंगे रोज। अरे विनय तूने देखा नहीं, तेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गया? तो जल्दी से निकाल ले 20, वो अमोल बोल रहा था 20% हो गया, 30% हो गया। कोई भूलने नहीं देता आपको। आप अगर पैसा लगाओ और गुफा में चले जाओ तपस्या करने और फिर 10 साल बाद आओ, फिर देखो। ओके। बट आप गुफा में तो जाओगे नहीं, आपको घर गृहस्थी चलानी है। यस। तो ये तो आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि कितना आप नॉइज को कट आउट कर सकते हो अपनी जिंदगी से। यस। कितना आप सुन के अनदेखा कर सकते हो। आपने वो मूवी देखी है द बिग शॉट? नो। वो आप देख लो, नेटफ्लिक्स पे है या कहीं तो है। ठीक है, ओके। ठीक है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। वंदना दीदी आपका है? Yeah, I feel like doing this for Nasdaq 100. You Because can. in 15 they were, in 4 years back they were at 15,000. Now they are at 11. So I feel they will grow. Yeah. In 4 years they will make it big. See, okay, two parts of my answer. One, you can definitely do that. Second, you should see the moment you want to write something which is like today it is 11,000, tomorrow it is 1 lakh. But for to grow from 11,000 to 1 lakh, you would have to eliminate that noise. You can't look at the screen कि आज 15 हो गया, अब 16 हो गया, अब 20 हो गया। Of course. ठीक है, उसको फिर आपको भूलना पड़ेगा कि मैं देखूंगी ही नहीं कि कितना हो रहा है। Correct. For 3-4 years, just invest and forget about it. Maybe 5 years, maybe I don't know for how many years, but you should not look at that, because the more you look at that, the more you will be keen to book the profit, na? Yeah. So if you're mentally prepared. हाँ, जब ये 11 का 15 होगा, आप डालोगे नहीं, आप बुक करने की कोशिश करोगे। तो 15 पे आपका सवाल ये भी तो आता है कि अब मैं बुक क्यों ना करूं? ऊपर 80 रुपए हो गया, RVNL अगर 100 रुपए हो गया तो मैं बुक क्यों ना करूं, राइट? तो मैं तब भी अलूफ रहूंगा, और जब 11,000 होगा तब भी अलूफ रहूंगा, जब 3,000 होगा तब भी अलूफ रहूंगा, जब 30,000 होगा तब भी अलूफ रहूंगा। दैट इज माई ट्रेनिंग। Detached. हाँ, एग्जैक्टली।
Okay. Right? It's like going in a dark room and telling somebody outside that dark room to keep buying. Right? Yeah. But is it a good idea to buy in indices like Yeah, bank? not a bad idea. Okay. Not a very good idea, but not a bad idea either. I can share more on that later. Okay. Thank you. Okay, I would have to go. Somebody is waiting. We'll close this call. Thank you, Puneet ji. Thank you. Thank you so much. Thank you, Puneet ji. Bye bye.